Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you friends on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You may call us on 2331-4444 or 2371-7106 or 2371-7117. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे ताजा आर्थिक समाचार। और आज सोमवार है, हर सोमवार की तरह आपके सवाल भी आज कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन कार्यक्रम में मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। Hello. Hello. Welcome Yamini to the program. Thank you. All right, let's start with the headlines. Equity benchmarks break their two-session losing run to end with slim gains amid mixed global cues. The rupee depreciated 21 paise against the US dollar and Brent crude falls to $42 per barrel. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच पिछले 2 कारोबारी सत्र की गिरावट के बाद प्रमुख घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ 21 पैसे कमजोर और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $42 प्रति बैरल के आसपास। शुरुआत शेयर बाजार की खबर से ही कर लेते हैं। पिछले 2 कारोबारी सत्र की गिरावट के बाद आज प्रमुख घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों ने सतर्कता बरतते हुए बाजार का रुख किया। रुपए में कमजोरी और अर्थव्यवस्था की बहाली को लेकर जारी चिंताओं के कारण बाजार में अभी भी जोखिम का माहौल बना हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 60 अंक की बढ़त से 0.16% ऊपर 38,417 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21 अंक चढ़कर 0.19% ऊपर 11,355 पर बंद हुआ। अगर व्यापक बाजार की बात करें तो व्यापक बाजार का प्रदर्शन सेंसेक्स के मुकाबले कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.78%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2% नीचे बंद हुआ। Well, markets today broke their two-session losing run to end with slim gains as investors made a cautious return to equities amid mixed global cues. A depreciating rupee and concerns over economic recovery contributed to the risk of sentiment. The 30-share BSE Sensex finally settled 60 points or 0.16% higher at 38,417. Similarly, the NSE Nifty advanced 21 points or 0.19% to close at 11,355. On the other hand, the broader market at BSE underperformed the Sensex and closed with losses. The mid-cap declined 0.78% while small cap fell 0.2%. HUL was the top gainer in the Sensex pack, spurting 1.8%, followed by TCS, ITC, Asian Paints, HDFC, HCL Tech and Nestle India. On the other hand, M&M, Bajaj Finance, NTPC, Ultratech Cement, ONGC and Bharti Airtel were among the major laggards, dropping up to 3.5%. BSE IT, FMCG, tech, metal, consumer durables, healthcare and energy indices ended up to 0.8% higher, while realty, utilities, basic materials, oil and gas, auto and capital goods closed with losses.
Global equities were mixed following the technology stocks-led sell-off in the previous two sessions. And now we are joined by Aditya from Thane. जी आदित्य, सवाल कीजिए। सर मेरा पहले तो मैं ये एक्सपर्ट आमी जी की तारीफ करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा बताती हैं, बहुत ही अच्छे जवाब होते हैं उनके सवालों के। जी। और मेरा सवाल ये है, पहला सवाल तो कि आज सेंसेक्स बढ़ा है ना, अगर आज सेंसेक्स बढ़ा है और मार्केट भी, पहले 3 सवाल सुन के फिर आप फोन काटिएगा। पहले सवाल मेरा ये है कि सेंसेक्स बढ़ा है लेकिन स्टॉक मार्केट में ओवरऑल ब्रॉड ब्रेथ नेगेटिव रही है, ये बहुत 2 दिन से हफ्ते में लगातार चल रहा है, तो क्या अब इन्वेस्टर्स को स्मॉल और मिड कैप में दिलचस्पी नहीं रही है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो डेट सेगमेंट में पैसे से क्यों उतर रहा है? तीसरा सवाल मेरा ये है कि सेंसेक्स गिर रहा है, तो आपको क्या लगता है वो गिर कर वापस से मार्च की गिरावट आ सकती है, और गिरावट आएगी तो उसका कितना हो सकता है उसका गिरावट का? जी यस डॉक्टर यामिनी। दे दूंगी। एक जो मार्केट्स हैं उसमें ओवरऑल कंसोलिडेशन देखी जा रही है। अगर आप पीछे के ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो कंसोलिडेशन नजर आई है। ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक है। एक आईपीओ आने के बाद वो इमीडिएटली ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जो कंटिन्यूसली दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है एंड अब्रॉड से भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है। पर ओवरऑल ग्लोबल क्लूज यूएस इकोनॉमी की रिकवरी पे भी बहुत स्ट्रांग नहीं है और उसका इम्पैक्ट सेंसेक्स पे भी पड़ रहा है। कुछ सेक्टर्स जिनका पॉजिटिव परफॉर्मेंस अभी आपको बताया गया, वो भी एक कंटिन्यूस सेक्टर्स माने जा रहे हैं जो लॉकडाउन में कंटिन्यूसली सर्वाइव करेंगे और एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएंगे। ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का पॉजिटिव रहेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी बढ़ोतरी देखी गई है और इन्वेस्ट करने के लिए ये जरूरी है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करें, जहां पे स्टॉक्स का जो बिजनेस है और कोर बिजनेस है वो कंटिन्यूटी मेंटेन कर सके और अपने फाइनेंशियल्स को स्टैंड बाय कर सके और स्टेबल रख सके। जी, सतीश हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं मैडम से रिगार्डिंग संसद की कार्रवाई के जो खर्चा होता है उस पर सवाल करना चाहता हूँ। मैडम, ये ऐसा कहा जाता है कि जो संसद की कार्रवाई है उसका 1 मिनट 2.5 लाख रुपए का है और 1 घंटा 15 करोड़ का और 1 दिन की कार्रवाई 144 करोड़ की है। तो मैडम ये पैसा किस चीज में खर्चा होता है? क्योंकि ये जो है हमारे एमपी वगैरह ये सैलरी तो हर महीने लेते ही है, चाहिए संसद की कार्रवाई में बैठे या ना बैठे। तो मैडम ये इतनी बड़ी रकम किस चीज में खर्च होती है? प्लीज मैडम इसका बताइए। धन्यवाद। जी, मैं आपका अर्थ कार्रवाई से नहीं समझ पाई, पर ओवरऑल जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है। तो सी की जो ओवरऑल मार्केट्स में डेवलपमेंट है वो फेयर और कंटिन्यूसली इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती हुई हो और जो मूवमेंट्स है उसमें किसी भी एंगल पे कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई भी इरेगुलर ट्रेडिंग ना हो। राइट। जी यामिनी, और बात अगर हम शेयर बाजार की करें तो आज जरूर मामूली बढ़त देखी गई है, लेकिन बीते सप्ताह की जो बिकवाली थी वो उसका दबाव क्या आप इस कारोबारी सप्ताह में भी देखने को मिल सकता है हमें? जी देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग रहेगी बिकॉज लोगों का अनुमान है कि मार्केट्स बढ़ेंगी जहां पे भी एक पॉजिटिव क्लू आएगा। जैसे मैंने कहा, अगर कि एक आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ वो एक पॉजिटिव क्लू देता है इन्वेस्टर्स को, या कोई पॉजिटिव न्यूज आती है कि जैसे मेट्रो खुलना या इकोनॉमी का वापस कोई और रिकवरी पैटर्न दिखाना, तो वो पॉजिटिव क्लूज लेगी मार्केट। पर क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काफी अभी क्वेश्चन हैं और जो Q1 के रिजल्ट्स आए हैं उसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिविटी नजर नहीं आई है, तो कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, पर मार्केट फिर भी पॉजिटिव ट्रेंड में रहेंगी। But Dr. Yamini, why do you think the broader markets have underperformed? Is it all, blame it all on COVID, or is it something beyond that as well? The overall earning scenario in the market is not very good because the economy is still working at a 33% level. And despite the PMI levels or the auto sector saying that there has been some gain which is there in the market, it has not reached to the previous levels. It continues to shadow the overall earning scenarios of most of the companies because of the lockdown and because of COVID. और अगर ये बात हम देखें एक निवेशक के नजरिए से अगर देखने की कोशिश करें तो ये बाजार में जो एक तेजी रही पिछले कुछ महीनों में मार्च के बाद से,
और वो आर्थिक जो बुनियाद है उसकी परवाह किए बिना बाजार आखिर कब तक आपको लगता है कि ये, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं अर्थव्यवस्था के वो बहुत आशाजनक नहीं हैं, तो बाजार में ये तेजी आपको लगता है कि ये बनी रहेगी या अब बाजार ने अपनी रफ्तार गंवा दी है? जी देखिए, बाजार जो है इस बात पे चलता है कि आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे। तो जब लॉकडाउन था, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टैग्नेट कर गई थी, स्लो डाउन पे थी, बिल्कुल ही जीरो पे आ गई थी, इसलिए मार्केट्स ने रिएक्ट किया और वो डाउन चली गई। जैसे जैसे मार्केट ओपन अप हुई, लोगों में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नजर आए, आपकी मार्केट्स ने भी बढ़ोतरी दिखाई है। पर क्योंकि इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा, पूरी तरीके से अपने स्तर पे नहीं पहुंची है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल इकोनॉमी के स्ट्रांग है, उनमें प्रॉब्लम्स नहीं है। क्रेडिट फ्लोज अवेलेबल कराए गए हैं, लोगों तक पैसा और राशन पहुंचाया गया है, कोशिश की गई है। जैसे करंट अकाउंट को अगर आप देखें तो वो भी सरप्लसेस में रहे हैं, आपका क्रूड ऑयल लो लेवल पर है। तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक ग्रोथ लेने के लिए जो है वापस अपना रीस्टार्ट इंजन कंटिन्यू करना पड़ेगा, और जब वो 100% लेवल पे पहुंचेगी तो वहां पे पॉजिटिविटी नजर आएगी। तो जो लोग उससे सरवाइव कर पाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट्स कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल टाइम पे जो है बाइंग कर रही हैं एट लो लेवल्स, और जैसे ही थोड़ा हायर लेवल पे जाता है तो प्रॉफिट्स बुक कर लेती हैं। और अच्छा मानसून भी है और खरीफ की बुआई का जो रकबा है वो भी बड़ा है, तो वो भी एक सेक्टर का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स जीडीपी जो नजर आया है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। Yamini, how do you see the market outlook? Can we still be positive, and can we still afford to be optimistic after the second quarter company results after September? Because it is always said that India has always been on sound fundamentals, and at macro level we have a very strong base. We have a very strong consumption base which continues to be there. स्पेसिफिकली अगर आप देखें खाद्य पदार्थों में और चीजों में आपका एक स्ट्रांग बेस है, पर हम उस लेवल पे, जैसे अगर फेस्टिविटीज का टाइम है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इस पीरियड में इस क्वार्टर में फेस्टिविटीज बिगिन हो जाती हैं, उसमें कंजम्पशन काफी स्ट्रांग रहती है। पर क्योंकि लोगों को अभी अनसर्टेनिटी है उनके जॉब्स के बारे में, उनके फ्यूचर इनकम्स के बारे में, तो कंज्यूमरिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है। क्रेडिट ऑफ टेक भी बैंक्स ने काफी सिलेक्टिव रखा हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हो सके वहां पे दे, वरना जहां पे उनको कोई भी हल्की सी भी शक लगता है वो उधर हाथ जो है खींच रहे हैं, तो कंज्यूमरिज्म उधर भी बढ़ नहीं पा रहा है, तो उनका इफेक्ट पड़ रहा है। पर फिर भी अगर आप देखें, इन्वेस्टर्स ओवरऑल मार्केट्स में एक पॉजिटिव साइट रखे हुए हैं। And we can always say that FMCG and consumer goods always give us some hope because, as you said, it's a huge economy we have. We have a huge market. When internationally people are eyeing us, so surely we have a good base to bank upon. Yes, we do have a very strong domestic consumption base, which continues to fuel growth internally in our economy, even when the outside market is closed for us. And now we have online friends, Ashok calling us. All right, I think we just kind of missed it. Well. जी, और अब रुक कर लेते हैं एशियाई बाजारों का, और एशियाई शेयर बाजार आज नुकसान के साथ बंद हुए। हालांकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.7% की बढ़त देखी गई। सिंगापुर का स्टेट टाइम्स अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बना रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.9% लुढ़क गया। जापान का निकेई 0.5% नुकसान में रहा, और हांगकांग के हैंग सेंग में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो अंतर्देशीय कारोबार वहां सकारात्मक रहा। लंदन के फुट्सी 100 में 1.9% का उछाल आया, जबकि फ्रांस का कैक और जर्मनी का डेक्स दोनों 1.6% की बढ़त में रहे। और हमारे साथ अब मुंबई से जुड़ गए हैं रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। हेलो जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है कि अभी जो मार्केट ऊपर है, तो उसमें जो प्रॉफिटेबल शेयर है वो बेच के निकल जाना चाहिए क्या? और क्योंकि अभी और ऊपर जा सकता है क्या? और दूसरा सवाल, All right, he was asking about the should we sell off the profitable shares?
जी, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुकिंग जब इंक्रीज कर रही है तब कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स अभी कंसोलिडेट करेंगी, हो सकता है गिरें, जिसके टाइम पे आप उसको एक लोएस्ट लेवल पे बाय कर सकते हैं और फिर से बाय कर सकते हैं और फिर बाद में बेच सकते हैं। पर मार्केट्स बाद में बढ़ेंगी जरूर, तो इसलिए काफी लोग अभी खरीद रहे हैं और इन्वेस्टेड रह रहे हैं ताकि बाकी आने वाले सत्रों में जब वो बढ़े तो वो उसका मुनाफा उठा सकें। And the large caps probably are the safest bet, as one would imagine. Huh? Yes. Yes. Moving on to Asian market. एशियन मार्केट के बाद हम अब रुपए की बात करें तो Yes, that's right. The rupee today depreciated 21 paise to 73 rupees and 35 paise against the US dollar as strengthening American currency and muted domestic equities weighed on the local currency. The dollar index, which gauges strength of the American currency against a basket of 6 currencies, rose 0.15% to 92.85. Yamini, how do you see the depreciation of rupee to 21 paise to 73 rupees and 35 paise against the US dollar? Well, if you look at the previous levels from what the rupee was, it has shown a better position. So I do see that since foreign investors see India as a market which would emerge and would show growth because there are possibilities of a nearby future vaccine coming in and the COVID cloud going out or the fear going out, maybe not the disease, but so there is a possibility of growth, maybe at a little later stage, at a slower pace, but then India remains a bright spot for many of the foreign investors. So rupee would strengthen both on current account surpluses as well as because foreign investors seem to be keen in India. And the fact that IT and tech stocks today ended up 0.8% higher, is that again something to be happy about? Well, IT and pharma and FMCG have been made, or even the healthcare stocks, Yes. have been one of the prime stocks during the lockdown and the COVID period. Absolutely. So they have been where the investing has been going on. और अब रुपए के बाद अब क्या हम कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें? जी. Yes, oil prices today fell around 1.5% as Saudi Arabia made a deep price cut. On the other hand, uncertainty over China's oil demand also weighed on crude prices. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42 per barrel, while WTI crude prices were around $39.20 per barrel. We have online Pankaj from Delhi. Hello, Pankaj. हेलो पंकज. हाँ जी. हाँ, सवाल पूछिए अपना. हाँ मैडम, डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, मेरा जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है टीवी रेडियो में. जी FM में, तो डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा. मेरा क्वेश्चन है कि जो सेबी जो भी रूल्स करती है उससे पहले ये इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली सेबी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वेस्टर की वजह से ही है. अगर इन्वेस्टर नहीं है तो उनका कोई एग्जिस्टेंस का कोई पॉइंट नहीं है. पॉइंट है कि कैश मार्जिन करा है उन्होंने, प्लेज का तो अच्छा किया है बट कैश मार्जिन करा है सेल परचेज पे, तो उसके अगर पोर्टफोलियो में इतना पैसा है तो उस सब रूल्स लाने से पहले वो अपने एसी ऑफिस के अंदर बैठ के बंद कमरों में करते हैं डिसीजन. तो वो मार्केट का फील क्यों नहीं लेते? लोगों से मेल में या सर्वे करके उनका ओपिनियन क्यों नहीं लेते? अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है वो फूल तो नहीं है ना इन्वेस्टर. इट इज बीइंग टेकन ग्रांटेड. मैं आपके उसमें ये मतलब एयर करना चाहता हूँ कि ग्रांटेड मत लिया जाए हमेशा. या 40-50 साल हो गए, आप ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं इन्वेस्टर को? जी अम्मी जी. जी, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंटिन्यूसली रेगुलेशंस देखती है कि कंपनीज जो लिस्टेड हैं वो जो है उन्हें कंप्लाई करें, और अगर उन्हें कंप्लाई नहीं करते तो उसके ऊपर कंप्लेन की जा सकती है. उससे वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है जब कंपनीज उन लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को या ओवरऑल मार्केट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करती हैं. जब भी कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट आती है या कोई पर्टिकुलर रेगुलेशन लाई जाती है, उससे पहले एक बैकग्राउंड वर्क किया जाता है जिसके तहत कमेटीज देखती हैं कि वो किस तरीके से इन्वेस्टर्स को फर्दर प्रोटेक्ट कर सकें और मार्केट को फ्री और फेयर प्ले के लिए बना सके, ताकि कोई भी इन्वेस्टर कहीं पे भी
ऐसा महसूस ना करे कि उसके साथ कोई चीटिंग हुई है या उसका कोई नुकसान हुआ है जब वो ट्रेड कर रहा है. We now have Parimal from Mumbai online. Hello, Parimal. हेलो. हाँ, परिमल जी सवाल पूछिए. जी ठीक, पूरा टीम को मेरा नमस्कार. नमस्कार जी. मेरे को पूछना ये है मैडम, अभी टेलीकॉम सेक्टर का जो AGR केस कंप्लीट हुआ है, तो इससे कैसे रहेगा आगे? और एक चीज पूछना है, जैसे कोई राइट्स लेकर है कंपनी, तो उसका प्रीमियम 50% प्रीमियम मतलब प्राइस चल रहा है, मतलब जो सपोज 100 रुपीज ये राइट दे रहा है और 150 रुपया उसका ये दे रहा है, तो इससे बेटर होगा क्या कंपनी का आगे का फ्यूचर? जी, आपका पहला सवाल था AGR इश्यूज पे जो ड्यूज रहते हैं वो टेलीकॉम सेक्टर ने अभी दिखाया है कि वो जो है पे कर देंगे, और जहाँ पे एक कंपनी थी जो कह रही थी कि वो नहीं पे कर पाएगी, उसने भी जो है कोशिश की है कि वो AGR ड्यूज पे कर दें. So overall, telecom sector has accepted the AGR dues, though they are still trying to negotiate, but then they are willing to make the payments which are there and are likely to sustain the payments by increasing the prices which are there. Tariffs increase करके या किसी और तरीके से वो पे करेंगे. ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में अभी एक वॉर भी स्टार्ट हो गई है, तो वो आप देख सकते हैं ब्रॉडबैंड को लेकर के. तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव रहेगी मार्केट टेलीकॉम सेक्टर के लिए. And Yamini, yes. Hello. And talking about oil, oil prices have fallen, but we do see that people are now getting back to near normal, if one may say so. As you just mentioned, that the fear is going. COVID may not have gone, but the fear is going. So how does that relate to the present circumstances? Despite the fact that the COVID, cases are rising, we do see that, the fact that it's being continuously reiterated that human trials are going on, a vaccine is coming out from Russia, or there is a continuous work on the vaccine, and the US also saying that we'll bring about these vaccines which are there. There is a clear-cut indication that this disease is curable and one needs not fear them. And so automatically people will gear up to back to the normal self, as one can also see in the indication of the metro coming back in place, so which is also indicative that we are likely to come to the normal self, but in a slow and a gradual manner, maintaining life security for people with social distancing. So oil consumption is also likely to grow up gradually. It will grow up. It will slowly gain pace and come to its normal levels. जी. और भगवान सिंह अब बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं. हेलो. हेलो. जी भगवान सिंह जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं असबा थ्रू बैंक में IPO डाला. उसके लिए मुझे मैसेज सिर्फ 14,900 करके ऐसा लीन अमाउंट करके आया, दूसरा कुछ भी नहीं है. क्या ये करेक्ट हुआ क्या? और कुछ मैसेज आता है वो बैंक थ्रू, मेरा मतलब SBI अकाउंट थ्रू मैं अप्लाई किया हूँ, तो करेक्ट है कि नहीं, कैसे पता चलता है? जी, आपने अगर अकाउंट से अपना अकाउंट जो है से पेमेंट ब्लॉक की थी और फिर पेमेंट की थी, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से डेबिट हो जाती है और वो इंडिकेटिव होता है कि आपको IPO ग्रांट कर दिया गया है, और बैंक इमीडिएटली उसका मैसेज आपको देता है. And Yamini, we find that the tech stocks have been plugged the most worldwide, and in fact we had more than 5% in the US stocks last week. How would you explain that? Well, it's difficult to say right now, but IT sector continues to remain a promising sector, though there's a lot of competition that is there. But given the circumstances that are there, the most promising and the revolutionary sector presently remains to be the IT sector. Because everybody's communicating through, thanks to the IT. Through online, yes, through online. And besides that, there's a lot of research that is going on, artificial intelligence, yes, blockchains and other, other new technologies, cloud computing, IoTs and others. In a way, it has replaced, IT medium has replaced the physical interaction and physical means of meeting, no? जी, और अभी यमनी हमारे जो पिछले कॉलर थे वो टेलीकॉम सेक्टर की AGR को लेकर के उन्होंने कुछ सवाल किया, और अभी जो स्थिति टेलीकॉम सेक्टर की है उसमें दबाव साफ देखा जा रहा है कि एक प्रति ग्राहक राजस्व की जो एक
आय होती है टेलीकॉम कंपनियों को, उसमें कमी आई है। ये वो एक चिंता है टेलीकॉम कंपनी की। और फिर ये एजीआर का इशू है। एजीआर का भी बहुत अच्छी खासी रकम सरकार को चुकानी है टेलीकॉम कंपनियों को। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के टेलीकॉम सेक्टर में आप अगले कुछ सालों में किस तरीके के बदलाव देख रही हैं? आज दो कंपनियों ने फिर से एक नए सिरे से अपने आप को एक रीलॉन्च करने की कोशिश की है। जी, रेवेन्यूज पे काफी प्रेशर रहेगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी प्रेशर में रहेगी एजीआर की वजह से और जो ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रीम्स रही हैं। पर क्योंकि कनेक्टिविटी कंटिन्यूअस है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम की वजह से हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर नॉलेज बेस से कनेक्ट करने हो लोगों के पास, अब हर एक फैमिली में हर एक मेंबर के पास टेलीफोन लाइंस हैं एंड वो रूरल एरियाज में भी रीच आउट कर रही हैं विद द प्रोसेसेस। उससे पॉजिटिव इंडिकेशन है टेलीकॉम के लिए। बट क्योंकि रेवेन्यू स्ट्रीम पे और कॉस्ट पे काफी प्रेशर्स है और कॉम्पिटिटिव बिडिंग और कॉम्पिटिटिव वॉर काफी स्ट्रांग है, उससे टेलीकॉम कंपनीज के सर्वाइवल पे थोड़ा मुश्किल रहेगा। पर क्योंकि इंक्रीज इन द सब्सक्राइबर बेस इज इंडिकेटर, हम मानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर का फ्यूचर अच्छा है। और अब अशरफ खान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जी, धन्यवाद। और हाँ, तो मैं पहले से आपका प्रोग्राम सुनता हूँ जब से स्टार्ट किया आपने। सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि पहले एमएसएमई तो नहीं हुआ करता था मैडम, अभी ये एमएसएमई क्या चीज है और ये आउटसोर्सिंग कंपनियां क्या काम करती हैं, जरा इसके बारे में बताइए। एमएसएमई का मतलब होता है मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट की कुछ कैटेगरीज होते हैं, टर्नओवर्स के बेसिस के ऊपर वो कैटेगराइज करते हैं कि आपकी जो बिजनेस है वो छोटा बिजनेस है, लघु बिजनेस है या एक मध्यम वर्गीय बिजनेस है, और उसके तहत कुछ स्कीम्स लाई जाती हैं जिनका उन्हें फायदा होता है, चाहे वो लोन प्रोवाइड करने के लिए हो या कुछ और फैसिलिटी, टेक्निकल फैसिलिटी या एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हो। आपका दूसरा सवाल था आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जो बिजनेस प्रोसेस है उसके अंदर अगर कोई एक्टिविटी है वो किसी और व्यक्ति को दे दी जाए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ना हो, और वो आपको वो एक्टिविटी करके दे जिसके लिए आप उसको पैसा दे, और वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हो, तो ताकि आपका जो ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस है उसमें प्राइस कम हो सके। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली सराफा बाजार की। तो दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 258 रुपए महंगा हुआ और ये 51,877 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर रहा। चांदी भी 837 रुपए की मजबूती से 69,448 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का मूल्य $1,932 प्रति औंस, जबकि चांदी $26.93 प्रति औंस पर रही। How do you see the outlook, Dr. Yamani, considering that festival times are ahead? Of course, it may not be as bright as it used to be with not much gatherings as it used to be, but how do you see the effect of that on the gold prices and consumption in the coming days? The gold prices will continue to remain high, primarily because people are finding it as a safe haven, not because of the festivities or the marriage, which might be one of the causes of the gold going up during this time, but then it is a safe haven. Overall festivities would see a lower level of consumption, much lower level of consumption than what they have been seeing in the past. So people want to do it, but they are restraining themselves because of the uncertainty. जी, और यामिनी, अब समय हो रहा है, हमें अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। आप कार्यक्रम में शामिल हुई और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब प्रोग्राम खत्म करने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर फिर से डाल लेते हैं। Yes, thank you, Vishal. Yes, before we close, a reminder of the headlines. Equity benchmarks break their two-session losing run to end with slim gains amid mixed global cues. The rupee depreciated 21 paise against the US dollar, and Brent crude falls to $42 per barrel. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच पिछले दो कारोबारी सत्र की गिरावट के बाद प्रमुख घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ 21 पैसे कमजोर और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $42 प्रति बैरल के आसपास। And on that note, it's time for us to bid adieu. So this is Lalema Aneja Dang with my co-anchor Vishal Sharma saying bye-bye, namaskar. Namaskar. Market Mantra.